जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मानं व्ययम्। परंतु हे नारायण, इस विषय में एक शंका है। यह बात स्वयं मेरी ही समझ में नहीं आती कि आपके विश्व रूप का दर्शन करने की पात्रता मुझ में है या नहीं। हे देव, यदि आप मुझसे यह पूछें कि यह बात क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आती, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई रोगी स्वयं ही कभी अपने रोग का निदान कर सकता है? और मेरी इस इच्छा की उत्सुकता इतनी प्रबल है कि उसके सामने मैं यह बात भी बिल्कुल भूल जाता हूँ कि इस इच्छा के अनुरूप मुझ में योग्यता भी है या नहीं। जिस प्रकार केवल माता ही जानती है कि मेरे छोटे बालक में कितनी योग्यता है, उसी प्रकार हे जगदीश, आप ही मेरी योग्यता का विचार करें और तब मुझे विश्व रूप के दर्शन कराना आरंभ करें। और यदि इसका पात्र इस योग्य नहीं है, तो पहले आप उसे देखने की पात्रता मुझ में उत्पन्न करें। आप सर्व समर्थ हैं। आपकी उदारता बिल्कुल निराले ढंग की है। आप जब दान देने लगते हैं तब योग्य और अयोग्य का कुछ भी विचार नहीं करते। हे प्रभु, इसीलिए मैंने आपसे जो कुछ दिखाने की प्रार्थना की है। हे देव, इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि वह आप मुझे दिखलावेंगे। It is said that no one can see, hear, understand or perceive the Supreme Lord by material research. But if one engaged in loving transcendental service with complete surrender unto his feet, then one can see the Lord by revelation. Every living entity is only a spiritual spark. Therefore, it is not possible to see or understand the Supreme Lord. Arjuna, as a devotee, does not depend on his speculative strength. He admits his inability. Acknowledging his position, he could understand that for a living entity, it is not possible to understand the unlimited infinite. If the infinite reveals himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the mercy of the infinite. The name Yogeshvara, master of all mystic power, is also very significant because the Lord has inconceivable power. Arjuna, honeyed with flavors of a dignified humbleness, pure reverence, and complete surrender unto the feet of the Lord, pleads for the inconceivable grace of the Lord. So this revelation is not possible for persons who depend on the strength of their mental speculations. Om. गीता सुधा భగవత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థు మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకము 4 మన్యసేది తచ్చక్యం మయా దృష్టమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మేత్వం దర్శయ ఆత్మనం అవ్యయం. అయితే హే నారాయణ, ఈ విషయంలో ఒక సందేహం ఉన్నది. తమ యొక్క విశ్వరూపం దర్శించుటకు అర్హత నాలో ఉన్నదా లేదా అనేది స్వయంగా నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఒకవేళ మీరు గాని నన్ను ఈ విషయం నీకు ఎందుకు అర్థమవట్లేదు అని అడిగినట్లయితే నేను
రోగి ఎవరైనా స్వయంగా తన రోగాన్ని బాగు చేసుకోగలడా అని మిమ్మల్ని అడుగుతాను. మరియు నా ఈ కోరిక యొక్క ఉత్సుకత ఎంత ప్రబలమైందో అనగా దాని ముందు నేను నా కోరికకు తగిన యోగ్యత నాలో ఉన్నదా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోతున్నాను. తన చిన్న పిల్లవాడైన కుమారుడికి ఎంత యోగ్యత ఉన్నది అనేది తల్లి మాత్రమే ఎలా ఎరిగి ఉంటుందో అదేవిధంగా హే జగదీశ, తమరే నా యోగ్యతను గురించి ఆలోచించండి. అప్పుడు నాకు విశ్వరూప దర్శనం చేయించుట ప్రారంభించండి. ఒకవేళ ఇతనికి తగిన యోగ్యత లేనట్టయితే ముందుగా మీరు విశ్వరూపాన్ని దర్శించే పాత్రతను యోగ్యతను నాలో కలిగించండి. ఎందుచేతనంటే మీరు సర్వసమర్థులు. మీ ఉదారత పూర్తిగా అద్భుతమైనది. మీరు దానం చేయాలనుకున్నప్పుడు యోగ్యత అయోగ్యతల గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించరు. ఏ ప్రభు, అందుచేత మిమ్మల్ని ఏది చూడాలని ప్రార్థించానో ఓ దేవా, దానిని మీరు తప్పక చూపించగలరనే దానిలో ఏమాత్రమూ నాకు సందేహం లేదు. పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 4. മന്യസി യദി നച്ചക്യം മയാ ദൃഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. ഹേ പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ അവിനാശിയായ വിശ്വരൂപം കാണാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ഹേ യോഗേശ്വര, ദയവായി ആ അവ്യയ സ്വരൂപത്തിന്റെ ദർശനം എനിക്ക് നൽകിയാലും. എന്നാൽ ഹേ നാരായണ, ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായി അറിയില്ല. ഹേ ദേവ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നതെന്ന് അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങയോട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഒരു രോഗിക്ക് സ്വന്തം രോഗം നിർണയിക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത്രയേറെ ശക്തമാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ അതിനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പോലും ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന് എത്രത്തോളം കഴിവും യോഗ്യതയും ഉണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ ശരിയായി അറിയാൻ കഴിയൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഹേ ജഗദീശ്വര, എൻ്റെ യോഗ്യതയും അർഹതയും വിലയിരുത്തേണ്ടത് അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം അങ്ങ് എനിക്ക് ദർശനം നൽകണേ. അതിന് ഞാനിപ്പോൾ അർഹനല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ദർശനത്തിന് വേണ്ട അർഹത എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം വിശ്വരൂപ ദർശനം തരണമേ. അങ്ങ് സർവശക്തനാണ്. അങ്ങയുടെ ഔദാര്യം അതുല്യമാണ്. അങ്ങ് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ യോഗ്യനാണോ അയോഗ്യനാണോ എന്ന് ഒരിക്കലും നോക്കാറില്ല. ഹേ പ്രഭോ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയോട് ഈ ദർശനം കാണിച്ചു തരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഹേ ദേവ, അങ്ങ് തീർച്ചയായും ദർശനം തരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 11, श्लोक 4. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. परंतु हे नारायणा, मला याबद्दल शंका आहे. तुमचे विश्वरूप पाहण्यासाठी मी पात्र आहे की नाही हे मला स्वतःलाच समजत नाही. हे प्रभू, जर तुम्ही मला विचारले की तुम्हाला हे का समजत नाही, तर मी तुम्हाला विचारेन की एखादा रुग्ण, आजारी मनुष्य आपला आजार स्वतः बरा करू शकतो का? आणि या इच्छेची माझी तळमळ इतकी तीव्र आहे की ती पूर्ण करण्याची क्षमता माझ्यात आहे की नाही हे मी पूर्णपणे विसरून जातो. जसे फक्त एका आईलाच माहीत असते की तिच्या मुलामध्ये किती क्षमता आहे, त्याचप्रमाणे हे प्रभू, तुम्हीच माझ्या क्षमतेचा विचार केला पाहिजे आणि मग मला विश्वरूप दाखवण्यास सुरुवात केली पाहिजे. आणि जर यासाठी पात्र असलेली व्यक्ती योग्य नसेल तर प्रथम तुम्ही माझ्यामध्ये ते पाहण्याची पात्रता निर्माण करा. तुम्ही सर्वशक्तिमान आहात. तुमची उदारता पूर्णपणे अद्वितीय आहे. जेव्हा तुम्ही दान देण्यास सुरुवात करता तेव्हा तुम्ही पात्र आणि अपात्र असा विचार करत नाही. म्हणून हे प्रभू,
म्हणूनच हे देवा, जे काही मला दाखवण्याची मी प्रार्थना केलेली आहे, तू मला दाखवशील की नाही यात शंका नाही. असे म्हटले जाते की भौतिक संशोधनाने कोणीही परमेश्वराला पाहू, ऐकू किंवा समजू शकत नाही. परंतु जर कोणी त्याच्या चरणी पूर्ण शरणागती पत्करून प्रेममय दिव्य सेवेत मग्न असेल, तर तो प्रकटीकरणाद्वारे भगवंताचे दर्शन घेऊ शकतो. प्रत्येक जीव केवळ एक आध्यात्मिक ठिणगी आहे, म्हणून परमेश्वराला पाहणे किंवा समजणे शक्य नाही. अर्जुन एक भक्त म्हणून आपल्या तर्कशक्तीवर अवलंबून राहत नाही. तो आपली असमर्थता मान्य करतो आणि आपली स्थिती ओळखून तो हे समजू शकला की एका जीवासाठी अमर्याद अनंताला समजणे शक्य नाही. जर अनंताने स्वतःला प्रकट केले तर अनंताच्या कृपेने अनंताचे स्वरूप समजणे शक्य आहे. योगेश्वर, सर्व गूढ शक्तींचा स्वामी हे नाव देखील खूप महत्वपूर्ण आहे, कारण भगवंताकडे अकल्पनीय शक्ती आहे. भगवंताच्या चरणी लीनता, शुद्ध आदर आणि संपूर्ण शरणागती या गुणांनी मग्न असलेला अर्जुन भगवंताच्या अकल्पनीय कृपेची याचना करतो. म्हणून जो व्यक्ती केवळ आपल्या मानसिक कल्पनांच्या बळावर अवलंबून असतो त्याला हे प्रकटीकरण शक्य नाही. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्. मुदा हे नारायण, एहि विषय में एकटा शंका अवश्य अछि. हमरा स्वयं ई नहि बुझाइत अछि जे अहाँक विश्व रूप के दर्शन करबाक पात्रता हमरा में अछि कि नहि. हे देव, जँ अहाँ हमरासँ ई पूछी जे ई गप हमरा किएक नहि बुझाइत अछि, तऽ हमर प्रश्न ई अछि जे कि कोनो रोगी स्वयं अपन रोग के यथार्थ निदान कऽ सकैत अछि कि नहि. आ हमर मोन में अहाँक विश्व रूप देखबा के इच्छा एतेक प्रबल भऽ गेल अछि जे हमरा ई बिसरा गेल अछि जे एहन इच्छा राखऽ जोग हम छिहो कि नहि. जेना मायेटा अपन छोट बालक के सामर्थ्य आ योग्यता जानैत छथि, ओहिना हे जगदीश, हमर पात्रता के यथार्थ विचार केवल अहीं कऽ सकैत छी. तैं जँ हम एहि दर्शन योग्य छी तऽ कृपा कऽ कऽ अपन विश्व रूप के दर्शन करब. आ जँ एखन हम एहि योग्य नहि छी तऽ पहिने अहाँ स्वयं हमरा ओहि योग्यतासँ संपन्न करू जाहिसँ हम अहाँक विश्व रूप के दर्शन कऽ सकी. अहाँ सर्वसमर्थ छी, अहाँक उदारता अद्वितीय अछि. अहाँ जखन कृपा वा दान दैत छी तखन जोग आ अयोग के भेद नहि देखैत छी. हे प्रभु, एहि कारण जे हम अहाँसँ दिव्य दर्शन के प्रार्थना केलहुँ, हे देव, से अहाँ निश्चिते हमरा ओ दर्शन करायब. अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.